کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ Alhamdulillah Azza wa Jal, Madani Muzakara. This is a beautiful and amazing way to learn Ilm Deen. Alhamdulillah Azza wa Jal, first of all, you get the sohbah, the company, and the ability to see a Wali Kamil, our Pir Murshid Shaykh Tariqat Amir Ahl Sunnah Dawah Barakatumul Aliyah. Just looking at his life and the way he practices the Sunnah and so much steadfast on that, it's amazing. الحمدللہ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ ضروری بات یہ ہے کہ ہمیں فرض علوم سیکھنے کو ملتے ہیں، اور جیسے قربانی کے ایام چل رہے ہیں، اس ایام میں روزے رکھنے تو اس کے بھی بارے میں بتاتے ہیں، ساتھ قربانی کرنی چاہیے، کون سا جانور ذبح کرنا چاہیے، کس عمر کا ہونا چاہیے، یعنی ان ساری صورتوں کے بارے میں بتایا گیا، اور یہ سن کر ہمیں بہت کچھ حاصل ہوا آج کے مدنی مذاکرے میں۔ ماشاءاللہ جو امیر سنت سے سوالات ہوئے ان میں سے ایک جواب مجھے یاد رہا اور یاد بھی رہے گا انشاءاللہ کہ بکری کے 2 تھن ہوں، اس میں سے اگر ایک تھن میں دودھ آنا بند ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور یہ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، شاید کہ اس پہ توجہ جائے بھی نہیں، تو مدنی مذاکرے میں شرکت کرنے کی وجہ سے یہ مسئلہ علم میں آیا۔ گھر کے حوالے سے اور بہن بھائیوں کے حوالے سے، ماں باپ کے حوالے سے اور رشتہ داروں کے حوالے سے جو ان کے حقوق ہے اور گھر کی جو ذمہ داری ہے کس طریقے سے رہنا چاہیے، میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہونا چاہیے، بچوں کے ساتھ کیسی تربیت کرنی چاہیے، امیر علیہ سنت کے مدنی مذاکرے میں انشاءاللہ یہ بہت چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے جو ہم نے پہلے یہ چیزیں نہیں سیکھی تھی جو دین کے حوالے سے۔ ہم بعضوں کا دنیا کے علوم تو سیکھ رہے تھے، ہمیں نہیں آتا تو علم دین نہیں آتا۔ اور مدنی مذاکرہ ایسی چیز ہے کہ جہاں پر آنے والے مختلف طبقے سے جو لوگ آتے ہیں، کوئی اسکول کالج یونیورسٹی، اور یہاں پر دین کے طلباء بھی آتے ہیں، لیکن ہمیں بھی وہ مسائل نہیں آتے جو ہم یہاں مدنی مذاکرے میں آ کر سیکھتے ہیں۔ ماشاءاللہ سے مدنی مذاکرے میں بہت کچھ جاننے کو ملا ہے۔ میری تو یہ ترغیب ہے کہ تمام چاہنے والے سب یہاں پر آئیں فیضان مدینہ اور علم کی برکت سے مستفیض ہوں۔ This is true that Alhamdulillah Azza wa Jal, those who attend Madni Muzakara, he gets the motivation, the jazba to do even more good deeds. Alhamdulillah Azza wa Jal, there are many people who have also faced this, that before they were in the life of sins, they were doing sins their entire life, but Alhamdulillah Azza wa Jal, they attended the Madni Muzakara, they found the Madni Mahol, and Alhamdulillah Azza wa Jal. مدنی مذاکرے کی اگر بات کی جائے تو سبحان اللہ مدنی مذاکرے میں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ طب کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پیر و مرشد بڑے کمال انداز میں رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر نماز کے بیسک مسائل کے حوالے سے بات کی جائے تو سبحان اللہ، اسی طرح جس طرح کا سیزن ہوتا ہے، جس طرح کا موسم ہوتا ہے، اس لحاظ سے پیر و مرشد بڑے کمال انداز میں رہنمائی کرتے ہیں۔ قربانی کا سیزن جاری و ساری ہے تو قربانی کے حوالے سے بہت سارے مسائل جو ہے الحمدللہ مدنی مذاکرے کے ذریعے ہمیں سیکھنے کو مل رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے، جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ البتہ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے، زیادہ اچھا ہے۔ یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کرنا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں کہ جب کہ اعتکاف کی نیت
की हो, नियत नहीं की थी और इफ्तार का मसलन टाइम हो गया तो आप नियत कर लीजिए और भले इफ्तार कर लीजिए। ताहम मुनासिब ये होता है कि सवाब के लिए नियत की जाए ताकि सवाब मिले और कुछ जिक्र व दुरूद कर लिया जाए जबकि खाने पीने की ज़रूरत हो। और नियत नहीं की तो अब नियत करके अल्लाह के लिए नियत करें सवाब के लिए और कुछ जिक्र व दुरूद करें 12 मरतबा मसलन दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब भले आप खाएं पिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। 1444 हिजरी के जुल हज शरीफ की आज चौथी रात है, 4th नाइट। चांद रात से मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला है। चौथी रात की निस्बत से मकतबतुल मदीना का रिसाला ज़ियादुल पेज नंबर 2 से फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 4। मुसलमान जब तक मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता है फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी ये कम पड़े या ज्यादा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरा शुरू हो चुका है। अब सवाल कीजिए और सवाल का जवाब वो भी बिस्सवाब यानी दुरुस्त दे पाऊंगे जरूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फौरन मेरी इस्लाह फरमाएं। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने कहे पर बिला वजह अड़ता नहीं, शुक्रिया के साथ अपनी भूल कबूल करता पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़ैर भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उज़ैर भाई मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। खैरियत तो है अब्दुल शकूर भाई, मुझसे क्या पूछना चाहते हैं? जी जी वैसे तो खैरियत ही है। पूछना ये था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने के बारे में बताया तो उनका रिएक्शन क्या था? लगता है अब्दुल शकूर भाई आपने अमीर अलैहि सुन्नत का रिसाला बेटा हो तो ऐसा नहीं पढ़ा। आप सही कह रहे हैं उज़ैर भाई, मैंने नहीं पढ़ा। इसमें ऐसा क्या है? भाई आपके सवाल का जवाब इसमें लिखा हुआ है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक के पैगाम यानी उनको कुर्बान करने के बारे में बताया तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू जान आपको जिस बात का हुक्म दिया गया है वो आप पूरा कीजिए, यानी मुझे कुर्बान कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। माशाअल्लाह। तो इसका मतलब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अपने आप को कुर्बान करने के लिए आगे कर दिया। जी जी बिल्कुल अब्दुल शकूर भाई ऐसा ही है। उज़ैर भाई ये तो बताइए उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? आपके इस सवाल का जवाब भी इस रिसाले में मौजूद है कि कुर्बानी के वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 7 साल या 13 साल थी। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटी उम्र से ही अपने अब्बू जान की हर बात मानते थे। जी सही कहा आपने। तो क्या हमें भी अपने अम्मी अब्बू की हर बात माननी चाहिए? ये सवाल तो बहुत अच्छा है। आइए इस सवाल का जवाब हम अमीर अलैहि सुन्नत से लेते हैं। प्यारे अमीर अलैहि सुन्नत, जिस तरह हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने अब्बू जान की हर बात मानते थे तो क्या हमें भी अपने अम्मी अब्बू की हर बात माननी चाहिए? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, प्यारा अंदाज है। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी जनाब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। और नबी मासूम होते हैं, गुनाह पर उनको कुदरत ही नहीं होती, ये गुनाह करते नहीं। हर बात इनका जो भी बात फरमाते हैं वो शरीयत के मुताबिक फरमाते हैं। तो इसलिए मतलब ये कि हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम तो हर बात मानते थे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो भी फरमाएंगे वो गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन अब जो पोजीशन ये है कि माँ बाप जो जो सही बात फरमाए ना तो वो तो माननी चाहिए। बाज़ वक़्त माँ बाप अगर ऐसा कहते हैं कि बेटा दाढ़ी मत रख, जो दाढ़ी वालों को कहते हैं, तो ये बात नहीं मानेंगे।
इस तरह कोई गुनाह की बात करे कि फुला गुनाह कर ले, चोरी कर ले, या ये मतलब, तो इस तरह का आमतौर पे कहते नहीं है। अगर कोई कहे तो फिर वो बात ना मानी जाए, और जो बात शरीयत के मुताबिक हो बिल्कुल मानी जाए। माँ बाप की फरमाबरदारी की जाए, इनकी खिदमत की जाए, इताअत की जाए, नाफरमानी से बचा जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। माशाल्लाह, ये जो रिसाला बेटा हो तो ऐसा मकतबतुल मदीना का बड़ा खूबसूरत रिसाला है, और 35 रुपीज़ है इसका रेट है, और 4 कलर में है और बड़ा खूबसूरत है, मालूमात से भरपूर है। तो इसके रिसाले को मकतबतुल मदीना से हासिल किया जा सकता है, और चाहें तो घर पर बैठे ज़्यादा तादाद में मंगवाएं, ताकि जो हमारे अतराफ़ में लोग कुर्बानी कर रहे हैं उनको भी मालूमात में इजाफ़ा हो। दावत इस्लामी की वेबसाइट से इसको फ्री में डाउनलोड भी किया जा सकता है। ये लिखा था रिसाला बच्चों के लिए, इसलिए इसमें जितना हो सका तो वो उर्दू को आसान पैराए में ना आसान करने की कोशिश की थी। तो ये बड़ों के लिए भी मुफीद है, बच्चों के लिए भी मुफीद है, जो उर्दू पढ़ सकते हैं, घर में पढ़ के सुनाई भी अम्मी अब्बू को, दादा दादी को, नाना नानी को, सबका ईमान ताजा होगा। तो पढ़ें तो सही है क्या इसमें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में। अल्लाह पाक का जिक्र करना ये ऐन सआदत की बात है। अल्लाह पाक ने हमें हजार नेमतों से माला माल किया है। उन प्यारी प्यारी नेमतों में से एक बड़ी प्यारी नेमत ज़बान है। अगर इस ज़बान का दुरुस्त इस्तेमाल देखें तो अल्लाह पाक का जिक्र करना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफात पर दुरूद और सलाम के गजरे निछावर करना है, दुरूद पाक पढ़ना है, कुरान पाक की तिलावत करना है। यहाँ पर सैयदी अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में अर्ज करूंगा कि बाज़ लोग जब सफ़ा मरवा की सई करते हैं तो सफ़ा मरवा की सई के दौरान एकदम बुलंद आवाज से जिक्र करते हैं, जिससे दीगर लोग घबरा जाते हैं, घबराहट का शिकार हो जाते हैं। आपसे अर्ज है इस हवाले से हमारी रहनुमाई फरमा दीजिए। माशाअल्लाह, सफ़ा मरवा की सही करने में लोग घबरा जाते हैं, ये सवाल में ये था गलबन। जी, वो जो जिक्र करते हैं ना जब करीब में चलने वाले, तो उससे वो घबरा जाते हैं। जी हाँ, लोग बाज़ों का चलो हज के सीजन में ज्यादा होता है, तवाफ में इससे ज्यादा होता है। तवाफ में भी वो काफिले आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से, तो ये इनके मुअल्लिम पढ़ाने वाला इनका साथ ये लाते होंगे, मतलब तो वो पढ़ा रहा होता है इनको दुआएं, जोर जोर से सब पढ़ रहे होते हैं। तो जो अपना पढ़ना चाहे उसके लिए आजमाइश तो होती है। तो इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, चाहे सफ़ा मरवा की सही हो, चाहे तवाफ हो, या कोई सी जगह हो कि जहाँ लोग अपना अपना पढ़ रहे हैं, इबादत कर रहे हैं निजी तौर पे, कोई तिलावत कर रहा है, कोई तस्बीह पढ़ रहा है, कोई ज़िक्र अज़कार कर रहा है, दुरूद शरीफ पढ़ रहा है। तो ऐसे मौके पर ज़ोर ज़ोर से पढ़ने से लोगों को तकलीफ होती है। यहाँ तक कि कोई सोया हुआ है तब भी ज़ोर से नहीं पढ़ सकते। जहाँ भी लोगों को तकलीफ होती है वहाँ नहीं पढ़ना चाहिए। तो ये ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हैं, इससे वाकई लोगों को तकलीफ होती है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। धीमी धीमी आवाज में जैसे खुद सुने, या दो चार साथ में, और इतनी धीमी आवाज है कि इनको आवाज पहुंच रही है, लेकिन वो जिस तरह ये जोरदार आवाज में पढ़ते हैं ना, ऐसी ना हो तो किसी को तकलीफ ना होती हो। ऐसी मध्यम आवाज हो तो उससे तकलीफ आमतौर पर नहीं होती, इसका ख्याल रखना चाहिए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
سنت کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ کیا طواف میں وضو کرنا واجب ہے؟ نیز کیا کوئی ایسا طواف بھی ہے کہ جس میں وضو کرنا واجب نہیں ہے؟ اگر کسی شخص نے طواف میں وضو نہیں کیا تو کیا اس کا طواف ہو جائے گا؟ طواف میں طہارت یعنی پاک ہونا ضروری ہے، وضو بھی ہونا چاہیے. طواف میں باوضو ہونا واجب ہے. اور کون سا طواف ایسا ہے جس میں وضو ہونا واجب نہیں ہے؟ طور پہلی ہو تو ایک الگ بات ہے، پہلی کے طور پہ پوچھ رہے ہو تو ایک الگ بات ہے، ورنہ بہرحال طواف کے لیے وضو کرنا واجب ہے. طواف ہے نا سمجھو نماز کی طرح ہے، نماز میں بھی تو وضو ضروری ہے، بغیر وضو کے نماز نہیں پڑھی جاتی نا. تو اسی طرح طواف بھی بغیر وضو نہیں پڑھا جائے گا. اس میں طہارت کے مسائل، کپڑے بھی پاک ہوں وغیرہ، یہ اس کے بھی مسائل ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال عرض ہے کہ جب چاند نظر آتا ہے نا ذوالحج کا، تو یہاں پہ بولتے ہیں کہ اس کی طرف اشارہ مت کرو کہ اس سے جو ہے انگلی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کیا واقعی ایسی کوئی حقیقت ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دے. چاند نظر جب آتا ہے ذی الحج کا تو کہتے ہیں اس کی طرف انگلی مت کرو ورنہ انگلی ٹیڑھی ہو جائے گی. ٹھیک. ٹیڑھی انگلی والے دیکھے کتنے ایسے لوگ جنرلی انگلی تو دکھاتے ہی، البتہ منع ہے یہ انگلی سے اشارہ کرنا، باہر شریعت میں مکروہ لکھا ہے. تاہم یہ کہ انگلی ٹیڑھی ہو جانا یہ تو کہیں نہ پڑھا نہ سنا نہ پریکٹیکل کیا. لوگ تو چاند پر انگلی دکھا ہی رہے ہوتے ہیں. یہ یعنی کہ بالکل یعنی پریکٹیکلی بھی یہ اگر افواہ ہو بھی تو غلط ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ بہت موٹے اور تگڑے جانور ہیں جو کہ چل بھی نہیں پا رہے ہیں، تو کیا ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی؟ چل تو رہے ہیں، یہ چل نہیں پا رہے ہیں، یہ اتنے ہیوی ہیں کہ جو مطلب ان کو چلنے میں دشواری ہو رہی ہے. تو یہ عیب تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو خوبی ہے کہ بہت فربے جانور ہیں، تگڑے ہیں. بالکل ان کی قربانی، اگر اور کوئی وجہ نہیں ہے تو ان کی قربانی ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. دنیا بھر میں بزرگان دین کے مزارات موجود ہیں، اور ہر دور میں مسلمانوں کا یہ انداز رہا کہ وہ ان مزارات پر حاضری دیتے ہیں. اب کون کس طرح حاضری دیتا ہے، کب حاضری دیتا ہے، یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ کوشچن ہے. یہ کنیکٹ کی بات ہے. بعض تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ مشکل پڑنے پر، پریشانی آنے پر ہی یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور کچھ کا لائف سٹائل ہوتا ہے کہ وہ مسلسل ریگولر جیسے ہر جمعرات کو لازمی مزارات پر آتے ہیں اور اپنے انداز سے عبادت کرتے ہیں. کوئی نوافل پڑھتا ہے، کوئی تسبیح پڑھتا ہے، کوئی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے. اور یہاں پر ایک طریقہ یہ ہے کہ جب کسی بھی مزار شریف پر آپ حاضر ہونے لگیں، پہلے علم حاصل کر لیں کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی لائف ہسٹری کیا ہے. اور جب آپ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک زبردست ہسٹری آپ کے سامنے آتی ہے. کہیں تحصیل علم دین ہے، کہیں فروغ اسلام کا جذبہ ہے، کہیں ہجرت کی داستان ہے، اور بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. جیسے آج ہم کلر کہار میں یہاں موجود ہیں، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پوتوں کے یہ مزار مبارک ہیں، جن میں حضرت یعقوب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں اور حضرت اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، حضور ہمیں ارشاد فرمائیے کہ آج کے اس جدید دور میں خاص طور پہ جو یوتھ ہے ان کے اندر جو کانسیپٹ پایا جاتا ہے مزارات میں حاضری کے حوالے سے، آپ اسے کیسے کلیریفائی کریں گے؟ اور ہمیں یہ سکھائیے کہ جب بھی ہم کسی مزار شریف پر حاضری کے لیے جائیں ہمارا انداز کیا ہونا چاہیے اور ہم کس انداز سے حاضری دیں. ماشاءاللہ. اولیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضری جو ہے مزارات پر، یہ ایک سعادت کی بات ہے، اور یہ کوئی آج کل کا طریقہ نہیں ہے، تو زمانے سے چلا رہا ہے. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال احد شریف کے جو شہداء ہیں ان کے مزارات پر
तशरीफ ले जाया करते थे। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना मज़ार शरीफ मदीने शरीफ में, सारे आशिकान रसूल इसके लिए तड़पते हैं कि हाजिरी मिले हमको। कौन ऐसा आपको मिलेगा कि जो इनकी बारगाह में हाजिरी का तलबगार ना हो, ख्वाहिशमंद ना हो। इसी तरह बगदाद शरीफ में गौस पाक के रोज़े पर भी जाने के लिए तड़पते हैं, करबला मुअल्ला की हाजिरी के लिए भी तरसते हैं। जहाँ जहाँ बुजुर्गान दीन हैं तो वहाँ लोग जाने के लिए, हाजिरी के लिए तरसते हैं। अभी अपनी अपनी तकसीम है, बाज तड़पते हैं, बाज नॉर्मल होते हैं, नहीं मतलब गफलत नहीं दिल करता, सुस्ती करते हैं, बाज मुखालफत करते हैं। तो ये अपना अपना नसीब है। अल्लाह पाक हमारे नसीब अच्छे करे और उसका करम है कि हम मतलब पहली कैटेगरी वाले हैं कि हमें मतलब ख्वाहिश है कि हम हाजिरी दें। ये ज़रा फर्स्ट है कि एक नेकी पर अगरचे हमारी कुदरत नहीं है कि हम जब चाहे मदीने शरीफ में हाजिरी दे दें, है ना। एक भारी तादाद ये कि एक बार भी बेचारे हाजिरी नहीं दे पाए, लेकिन ख्वाहिश है। तो ये ख्वाहिश होना भी एक ज़रा के गुड साइन, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी अलामत है। और बात ये कि पैसे हैं लेकिन वो हज फ़र्ज भी अदा नहीं करते, तो ये बहरहाल गलत और ख़ता कर रहे हैं। इनको फ़ौरन हज, जिन पर फ़र्ज है उनको फ़ौरन करना चाहिए हज बिला ताख़ीर, जबकि असबाब मौजूद हों, टाइम भी आ गया है, कोई और रुकावट भी नहीं है, जाना मुमकिन है, तो बिल्कुल उनको निकल जाना चाहिए, हज कर देना चाहिए। आइंदा साल करेंगे। ये भी लोग जिन्हें कि हालांकि अभी थोड़ी मसरूफियत है वगैरह, ज़िंदगी का क्या भरोसा, आइंदा कल का कोई भरोसा नहीं है, बल्कि आइंदा पल का भरोसा नहीं है, तो आइंदा साल का क्या भरोसा। तो नेकी, वैसे भी हदीस पाक में कि नेकी में जल्दी करनी चाहिए। तो बहरहाल ये कि हाजिरी एक सआदत है। पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे, खुद फरमाते कि पहले मैं मना करता था कब्रों की हाजिरी का, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि हाजिरी दो। इसके कब्रों की हाजिरी से दिल नरम होते हैं, आँखों में आंसू आते हैं वगैरह, इस तरह ये हदीस पाक के मतलब खुलासा अर्ज कर रहा हूँ कि ये फ़वाइद हैं कब्रिस्तान की हाजिरी के। तो अब कब्रिस्तान की हाजिरी मुफीद, इजाज़त। तो अगर कोई कब्र कहीं जुदा बनी हुई है तो उसकी हाजिरी में फिर क्या हरज। तो हमारा लेके मज़ारत पर जाना कोई भी मतलब यानी कि मना करने के लिए कि दलील नहीं ला सकता कि मज़ार शरीफ पर एक मुसलमान की कब्र कहीं भी बनी हो तो वहाँ जाना मना, यहाँ जाना मना, यहाँ इजाज़त, वहाँ इजाज़त। तो ये तकसीम जब शरीयत ने नहीं की तो बंदा कौन है जो तकसीम करे। इसलिए मतलब हाजिरी देनी चाहिए, और जब भी हाजिरी दें तो इसके आदाब भी है कि कदमों की तरफ से हाजिरी दी जाए। जहाँ मज़ार शरीफ में कदम है तो कदम से इसको पाइंती भी बोलते हैं, और अदब से बुजुर्गों के कदमैन शरीफैन भी बोलते हैं। तो वहाँ से हाजिरी दे और यूं सामने से आए, पीठ पीछे से नहीं, सामने से आए, कदमों से यूं चलता हुआ कदमों के पास और चेहरे की तरफ रुख करके किबला पीठ को हो जाए, पीठ किबले की तरफ होगी, क्योंकि मैयत का चेहरा जो है वो किबले की तरफ होता है, तो बुजुर्गों का चेहरा भी किबले की तरफ। तो अब सलाम अर्ज करे, अस्सलाम अलैका या सय्यदी या हज़रत लिखा है बुजुर्गों के मज़ार पर, इस तरह सलाम अर्ज करे। फिर ये क्या है, चार हाथ दूर रहना, ये अदब है, यानी तकरीबन 2 मीटर यानी दूर रहे, और वहीं से मतलब सलाम अर्ज करे, दुआ करे, कुछ पढ़े, मसलन सूरह फातिहा और 11 मरतबा कुल हु अल्लाह शरीफ पढ़ें, या दीगर कुरानी सूरतें पढ़ें, अल्लाह तौफीक दे, यासीन शरीफ पढ़ें, तबारक शरीफ पढ़ें, जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ें, भले बैठकर पढ़ें इत्मीनान से, और पढ़कर फिर इसाले साहब बारगाह रिसालत में भी नजर करें, और सभी को
जो दुनिया से पर्दा फरमाए उनको, जिंदों को भी, और साहिब मज़ार को भी, जिनका मज़ार शरीफ है उनको भी ईसाल सवाब करे। यानी कि ये कहें कि अल्लाह मैंने जो कुछ पढ़ा है इसका सवाब मेरे खामी भरे अमल के मुताबिक नहीं, अपने कामिल करम के मुताबिक, अपनी रहमत के शाया निशान, इसका सवाब मुझे अता फरमा। और ये सवाब प्यारे आका, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमा। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अब तमाम अंबिया किराम और इस तरह सहाबा किराम ये कहते हैं, फिर बुजुर्ग का नाम लें, मसलन हुजूर गौस आजम के मज़ार पर जहाँ हाजिर हैं, तो इनको भी सवाब इसका अता फरमा। तो इस तरह मतलब ये कि ये अल्फाज मैंने कहे, अल्फाज ज़रूरी नहीं है इस तरह के, जो भी जिन अल्फाज में भी आप कहें कि ये सवाब इनको या अल्लाह पाक अता फरमा या इनको ये सवाब पहुँचे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह मिरआतुल मनाजी जिल्द 2 में लिखते हैं, तमाम उम्मत का इस पर इत्तिफाक है कि ज़ियारत क़ुबूर, कब्रों की ज़ियारत सुन्नत है, क्योंकि इससे ज़ाहिर, इन ज़ियारत करने वाले को, कब्रों पर हाज़िरी देने वाले को अपनी मौत याद आती है, जिससे दिल में नरमी पैदा होकर आखिरत की तरफ तवज्जो और दुनिया से बेतवज्जोही हासिल होती है। ज़ियारत क़ुबूर में ज़ाहिर यानी कब्र ज़ियारत करने वाला, हाज़िरी देने वाला, इसको भी फ़ायदे हैं और मय्यत को भी, ज़ाहिर को सवाब, आखिरत की याद, दुनिया से बेरग़बती हासिल होती है, और मय्यत को ज़ाहिर से उन्स, एक मोहब्बत और कंपनी, एक लुत्फ़ आता है, साथ मिलता है उन्स, और उन्स के और उसके ईसाले सवाब से नफ़ा हासिल होता है। हज़रत इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह की कब्र मुबारक कबूलियत दुआ के लिए मुजर्रब तिरियाक है। यानी हज़रत मूसा, इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह ये वो बुज़ुर्ग है कि इनके मज़ार शरीफ पर हाजिर होकर दुआ मांगी जाए तो वो कबूल होती है, यानी ये बहुत कबूल होती है। वह मुजर्रब तिरियाक, मुजर्रब एक तरह के तजर्बे से ये बात की जाती है कि मेरा तजर्बा है, तजर्बा क्या हुआ है। एक मुजर्रब के माना ये होता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब इसमें ताकीद के लिए मुजर्रब नुस्खा जो बोलते हैं ना, तो यूँ मतलब है कि वहाँ दुआ ज़रूर कबूल होती है, समझ लो। और इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जिन बुज़ुर्गों से ज़िंदगी में मदद मांगी जा सकती है, उनसे बाद वफ़ात भी मदद मांगी जा सकती है। ये इह्याउल उलूम में लिखा है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चंद सवालात हज के ताल्लुक से करने हैं आपसे। अल्लाह पाक के सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा हज फरमाया था? हज क़िरान। हज क़िरान वाला क्या उम्रे के बाद हज से पहले नफली तवाफ कर सकता है? हज क़िरान वाला नफल तवाफ कर सकता है, उम्रा नहीं कर सकता। हज क़िरान करने वाले पर एक उम्रा तो उसने कर लिया ना शुरू में, लेकिन उसमें भी ये टिंड नहीं करवाएगा, हल्क नहीं करवाएगा, लेकिन अब मजीद दूसरा कोई उम्रा वो नहीं कर सकता। तवाफ कर सकता है, तवाफ कर सकता है, नफल तवाफ। हज क़िरान करने वाले पर क्या 2 कुर्बानियां वाजिब होती हैं? एक कुर्बानी वाजिब होती है, और इसकी कई सूरतें हैं कि इस पर जो कफ़ारे है ना वो डबल होते हैं।
कफ़ारे में जैसे दम भी, जहाँ की सूरतें लिखी हुई रफ़ीकुल हरमैन में लिस्ट है कि कहाँ कहाँ करनी, तो फिर 2 कुर्बानी, अगर भूल की तो 2 दम, 2 कफ़ारे, जो सदक़ा फ़ित्र के बराबर जो दिया जाता है, ऐसे तमत्तो में 1, तो क़िरान में 2। तमत्तो वो होती है, हज होता है कि जिसमें उम्रे के बाद एहराम खोल दिया जाता है, टेंट वगैरह करा के, और ये अपना हस्ब मामूल लिबास पहन लिया जाता है। और क़िरान में यह कि जब से एहराम बांधा वो उतारा नहीं जाता, ये एहराम की पाबंदियाँ इसकी जारी रहती हैं। और जब ये कुर्बानी के बाद हल्क करवाएगा, हल्क करवाने से उसका जो एहराम है उसकी पाबंदियाँ ख़त्म होगी। जज़ाकल्लाह। हल्क माने ये हम जिसको टिंड कहते, गंजा कहते, गंजा कराना, गंजा कराना, कोई टिंड कहता है, कोई अरबी में हल्क कहते हैं। सही जहाँ की जाती है वहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉनिक भी गाड़ियाँ होती हैं, क्या उसमें सही कर सकते हैं बैठकर? बिला शरई उज़्र, अगर शरीयत ने जिसको इजाज़त दी वो तो कर सकता है, लेकिन जिसको शरीयत ने इजाज़त नहीं दी वो नहीं कर सकता, कि पाँव पे चलकर वाजिब है सही तवाफ। अगर 4 फेरे सवारी पर बिला उज़्र, मजबूरी नहीं थी, शरीयत की इजाज़त के बगैर 4 फेरे किसी ने इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पर या किसी और गाड़ी पर या व्हील चेयर पर जैसे कर लिए, तो उस पर दम वाजिब हो गया। और 4 से कम किए थे, 3 किए थे, मसलन 2 किए थे, तो 1 फेरे के बदले 1 सदक़ा फ़ित्र की रकम या गेहूँ या जो भी मतलब अनाज वगैरह दिया देना वाजिब हो जाएगा। अब अगर किसी ने ये 4 फेरे दोबारा कर लिए तो दम भी माफ हो जाएगा, और ये कफ़ारा आता 2-3 फेरे की वजह से तो वो भी माफ हो जाएगा, दम साकित हो जाएगा। इसका मतलब यही कि माफ हो जाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज पैदल करना अफजल है या बस वगैरह गाड़ी में? पैदल अफजल है न, जिसको पैदल करने पर कुदरत हासिल है तो वो पैदल करे। मक्का मुकर्रमा से पैदल मीना शरीफ, मुज़दलिफ़ा शरीफ, अरफात शरीफ, फिर मुज़दलिफ़ा, फिर मीना शरीफ, फिर तवाफ़ ज़ियारा के लिए आया। इस तरह ये पैदल 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 है। हज़ारों लाखों हुज्जाज होते पैदल कर रहे होते, लेकिन अब ये कि जो यानी कि सेहत अच्छी हो, चलने की प्रैक्टिस हो, वो करे। अब यहाँ तो मतलब 2.5 गज पर मस्जिद है तो ठुर करके स्कूटर पर जाने वाले तो तवाफ करेंगे तो ची बोल जाएंगे, हाँ सही बोलता हूँ, जान निकल जाएगी, अधमुए हो जाएंगे। जो पैदल चलते हैं ना वो मदीना वो फायदे में रहते हैं। तो पैदल तो सबको चलना चाहिए, इसी नीयत से चलेंगे, आज नहीं तो कल मदीने जाएंगे इंशाअल्लाह, तो वहाँ भी पैदल चलना है। मस्जिद नबवी शरीफ भी इतनी अब तो उसकी तोसी हो गई है कि पैदल चल के बारगाह रिसालत में हाजिरी देने के लिए भी बहुत पैदल चलना पड़ेगा। और इसी तरह काबा शरीफ, मस्जिद हराम शरीफ भी इतनी अब वसी हो गई है कि अगर मुबालगा करूँ तो ये कहूँ कि काबे शरीफ तक पहुँचने के लिए आपको मीलों चलना पड़ेगा। घर एक तो दूर, घर बिल्कुल ये थोड़ी है कि मस्जिद से मिले हुए, जो दुकानें इस तरह घर है, घर भी फासलों पर। और जो करीब तरीन होटल होते हैं ना, ये हम जैसा इसका किराया सुने ना तो मुबालगा करते तो गश खा जाए। यानी यूं समझो कि मैं अपने वतन की करेंसी के हिसाब से समझो लाख 2-2 लाख रुपए उसकी खाली दिहाड़ी होती है, एक दिन का किराया। तो हम लोग सोच भी नहीं सकते कि ऐसे होटल में ठहरे। तो हमें मिलेगा मकानदार अपनी माली हैसियत के मुताबिक, तो ये बहुत दूर मिलेगा। तो पैदल चलेंगे, आपका वजन कम हो जाएगा। वैसे ये है, अगर वाकई आप तवाफ करते रहे और बार बार काबे शरीफ के जलवे देखने के लिए आते जाते रहे तो मदीना हो जाएगी सेहत आपकी। लेकिन ये कि यहाँ चलने की, पैदल चलने की आदत रोजाना सबको चाहिए कि यकमुश्त 1.25 घंटा चले, 45 मिनट्स मुमकिन हो तो।
पौन घंटा, और यूं नहीं, यूं आस्ते आस्ते थोड़ा यूं अच्छी स्पीड, वाजबी स्पीड, कोई ये भी ना समझे कि दौड़ा हुआ जा रहा है, क्या हो गया, लेकिन थोड़ी अच्छी स्पीड हो और मुसलसल हो, तो इससे कई बीमारियां दूर होती हैं, वजन भी कम होता है, वजन भी कम होता है। और अगर इस तरह चलने की वजह से, गर्मी से नहीं, अच्छी तरह चलने की वजह से जो पसीना निकलेगा वो कोलेस्ट्रॉल को भी निकालेगा, वो इसके बड़े फायदे हैं। मैदा आपका सेट हो जाएगा, जोड़, हड्डियां, पट्टे वगैरह वगैरह, मदीना मदीना। पैदल चलने वाले बड़े मतलब ये लेके अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। हम लोग जो पैदल नहीं चलते ना, बस वो कुर्सी पर बैठ गए, खलास, कुर्सी के बगैर गुजारा नहीं है। कुर्सियों पर तो बैठने की आदत आप नहीं डालेंगे, फायदे में रहेंगे। हम डाल के फंस गए, हमारे हाल से इबरत हासिल करें। यानी जब जब जरूरत हो भले बैठे, लेकिन आप नीचे बैठे, नीचे बैठे, सुन्नत के मुताबिक खाना खाएं। अब घर घर में टेबल कुर्सियां खाने के लिए भी आ गई हैं, डाइनिंग टेबल घर घर में। नहीं, ये वाकई सुन्नत भी नहीं है। सुन्नत नीचे बैठकर एक घुटना खड़ा करें, और जैसे उल्टा घुटना खड़ा किया, सीधा घुटना खड़ा किया, उल्टा पांव बिछाया, उस पर बैठ गए, या दो जानू बैठ कर खाए। सुन्नत में अजमत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो तरीके कार में बताया, जो आपने अमल किए, और जिनमें मतलब जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियात में, मखसूसात में से नहीं है, जिनकी उम्मत को इजाजत है, वो तरीके उनमें हमारे लिए दो जहाँ की भलाइयाँ हैं, नेकियाँ हैं, सवाब है, जन्नत का खजाना है। लेकिन हम लोग बड़े यानी कि वो लेजी हो गए, सुस्त हो गए। तो इसलिए चलने की आदत रखें कि कभी तो मक्के जाऊंगा, कभी तो मदीने जाऊंगा, कभी तो तवाफ करूंगा, तो ये मैं, ताकि मैं चल सकूं मक्के मदीने। वरना फिर वहाँ कोई मेरे को कदम कदम पर, स्कूटर तो है नहीं अपने पास, वहाँ गाड़ी भी कहाँ से आएगी। टैक्सी रोकोगे तो टैक्सी भी दूर उतारती है। अगर आपके पास पैसे कुछ ज्यादा है तो टैक्सी भी इतने पैसे लेगी, मगर वो आपको भी इतनी दूर उतारेगी। हज के सीजन में बिल्कुल रास्ते सारे ब्लॉक कर दिए जाते हैं कि भाई यहाँ तक ट्रैफिक, अब पैदल मार्च। हर हाजी को मीलों, चाहे बूढ़ा हो चाहे जवान हो, मीलों पैदल चलना होता है। अलबत्ता व्हील चेयर की सहूलत अपने तौर पर बंदा ले सकता है। अपना व्हील चेयर हो तो वो मस्जिदुल हराम तक या मस्जिद नबवी शरीफ तक कोई चला कर उसको ला सकता है। लेकिन वो व्हील चेयर भी बाहर छोड़नी होती है, मस्जिदुल हराम की भी, क्योंकि अंदर फिर व्हील चेयर मिलती है। पासपोर्ट जमा करके, पहले तो ये था, करंट पोजीशन मुझे नहीं पता, अब तो इलेक्ट्रॉनिक का सुना है। जो आपने सवाल, तो आप पता नहीं क्या पोजीशन है, लेकिन ये क्या है। और फिर व्हील चेयर को भी संभालना पड़ता था। व्हील चेयर अगर यूं आपने समझा कि यहाँ कुछ नहीं होता, तो यहाँ वहाँ वो कुछ होता है जो कहीं नहीं होता। ये व्हील चेयर उठा के इधर उधर डालाते, ढूंढते रहो। तो ये हम तो बांध देते थे, मेरी व्हील चेयर होती थी ना, तो उसको कहीं बांध कर रखेंगे तो फिर खोल के नहीं जाएंगे, और वैसे छोड़ देना तो वैसे भी मुनासिब नहीं है। ये बच्चे हाँक कर तो छोड़ आएंगे, छोटे बच्चे भी तो होते ना। बहरहाल पैदल चलने की आदत इस नीयत से करें कि मक्के में जाऊं, मदीने में जाऊं, इंशाअल्लाह वहाँ पैदल चलूंगा। इसलिए प्रैक्टिस होगी तो चलूंगा, वरना मेरी जान को आ जाएगा। बिल्कुल लेने के जिनके जो बेचारे नहीं आदी होते ना, इनको समझ पड़ती होगी कि कैसे तवाफ होता है और कैसे सही होती है। मीलों मील मतलब चलना पड़ता है इसमें। अल्लाह हम सबको तौफीक दे और पैदल चले, और मजा भी पैदल का है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मस्जिद हराम तक पैदल, व्हील चेयर पर, मगर तवाफ सही अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह पैदल किए, अल्लाह की रहमत। और जब भी हाजिरी हो आप दुआ करें मेरे को व्हील चेयर की मोहताजी न रहे। आमीन आमीन। अब मैं पैदल सब करूं, अल्लाह करे। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मक्के शरीफ से जिस तरह मुज़दलिफ़ा, मीना और जो का पैदल किया है मैंने, वो जवानी थी, लेकिन अब ज़ाहिर वो सूरत हाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लेकिन उन दिनों में चेयरमैन नहीं था,
अब चेयरमैन हूं, अब इतना नहीं चल सकूंगा। तो अब चेयरमैन नहीं रहे और क्या बोलते हैं, फर्श मैन हो जाए, लैंडमैन। क्या हाजियों पर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतुल बकी, उहद जैसे जबल उहद है और मस्जिद कुबा, क्या इन तमाम मकामात या दीगर मकामात जो हैं वहाँ पर उनकी ज़ियारत लाजिम है, वहाँ जाना, उनको देखना? मस्जिद नबवी शरीफ की हाजिरी, ये तो सरकार के रोज़े पर चूंकि हाजिर होना हाजी के लिए जो आप होता है तो वो तो करीब वाजिब है। तो रोज़ा अनवर तो मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर है। सबसे बड़ी ज़ियारत गाह ना मदीने में बल्कि रूए ज़मीन पर सबसे बड़ी ज़ियारत गाह ये है रोज़ा रसूल। और असले मुराद हाजिरी इस पाक दर की है, बंदा जाता है इसीलिए इससे मुशर्रफ हो। बाकी ज़ियारतें बिल्कुल करनी चाहिए, सआदत है। लेकिन अगर किसी ने नहीं की तो ज़रा इस पर कोई यानी कि इसको बुरा नहीं कहा जाएगा, जबकि इन ज़ियारतों को बुरा नहीं कहता। आज तो ऐसे भी जो खरखोपड़ी होते हैं ना, वो मतलब इन चीज़ों को मानते ही नहीं है, हम ऐसा वो नहीं मानते। तो वो अलग सूरत है कि जो करते हैं इनको ज़ियारतें तो उनको गुनाहगार समझते हैं, बुरा वाला समझते हैं, बुरा वाला कहते हैं। तो यूं तकसीम है। तो अल्लाह का करम है कि हमको तकसीम में इश्क़ रसूल की सौगात मिल गई, मोहब्बत रसूल की सौगात मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए ये करोड़ों सआदतें हैं, जितना शुक्र अदा करें मौला का कम है। कहीं इधर उधर फंस जाते तो पता नहीं क्या होता। इसीलिए मैं कहता हूँ दावत इस्लामी को छोड़कर मत जाना, वरना आप मिलोगे नहीं किसी को। अल्लाह ना करे दिमाग ख़राब हो गया तो, अल्लाह ना करे। बस दावत इस्लामी हमें मदीने का रास्ता दिखाती है और वाया मदीना जन्नत के रूट पर ले जाती है। इसलिए दावत इस्लामी अव्वल आखिर दावत इस्लामी में मरना जीना दावत इस्लामी। अल्हम्दुलिल्लाह इश्क़ रसूल के जाम पीने दावत इस्लामी में रहे, इश्क़ सहाबा व अहले बैत के जाम पीने तो दावत इस्लामी में रही है, और इश्क़ औलिया किराम के जाम पीने तब भी दावत इस्लामी में रही है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने पैदल चलने के ताल्लुक से भी अभी जो इरशाद फरमाया था, तो जो इस वजह से एक मालूमात के मुताबिक मैंने भी मालूमात ली है, मक्का मुकर्रमा से जो जैसे कि पैदल हज होता है और मीना शरीफ और फिर अरफात और फिर मुज़दलिफ़ा, फिर मीना और फिर मक्के पाक भी जाते हैं, तवाफ़ ज़ियारा वगैरह, तवाफ़ वगैरह। तो ये तकरीबन मजमूई तौर पर देखा जाए तो कम व बेश 70 से 80 किलोमीटर का ये पूरा फासला तय होता है। तो ये वक्फे से है ना, वक्फे से। और फिर ये कि रास्ते में शेड लगे हुए हैं जगह, बाज़ जगह पर बिल्कुल इसका अलग रूट रखा है, सभी वहाँ ने गाड़ियाँ नहीं चलती, ट्रैफिक नहीं है वहाँ, और पैदल लब्बैक की सदाएं लगाते हुए एक रूह परवर मंजर है। एक बार अल्लाह करेगा मैं अरफात से मुज़दलिफ़ा चले थे, आपको याद होगा। अरफात से मुज़दलिफ़ा तो हम कई बार चले। तो ये कि फिर रास्ते में आप बोलोगे क्या खाऊंगा और क्या पीऊंगा, उधर हम लंगर बोलते हैं, उधर सबील बोलते हैं। तो गाड़ियों पर गाड़ियाँ, शरबतें बट रही हैं, तो ये ठंडी बोतलें बट रही हैं, तो लस्सी बट रही है, तो कहीं कुछ तो बिस्कुट, तो चॉकलेट, तो क्या क्या बट रहा होता है, ठंडे पानी बट रहे होते हैं। देखिए आप मतलब भूखे प्यासे नहीं रहेंगे, इतना मिलेगा रास्ते में। बड़े मतलब बड़े बड़े अरब शेख होते हैं ना, ये लोग बड़ी मतलब खैरात करते हैं वहाँ, ये इस तरह के हाजियों के लिए। ये ज़रा ज़कात सदका नहीं होता है, सबके लिए होता है, ये बहुत बांट रहे होते हैं माशाअल्लाह। हमारे यहाँ भी जुलूस बिलात में लोग बांट रहे होते ना, तो यूं वहाँ भी बांट रहे होते हैं। वहाँ सबील बोलते, सबील 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 करके। और जहाँ जिस तरह यहाँ फेंक देते हैं और पाँव में कुचल जाते हैं, वहाँ भी ऐसा करते हैं। हम माफ करना, खाली पाकिस्तान वाले ही नहीं करते, वहाँ के लोग भी ये गाड़ियों से यूं फेंक रहे और हजारों
लाखों रुपए का वहाँ भी जो लंगर या सबील जिसको जो ये पाँव में कुचल कुचल कर, ये तो है मतलब ये हर जगह की इंटरनेशनल कहानी है ये। अल्लाह पाक रहमत की नज़र फरमाए। इनको भी अक्ल सलीम लेनी चाहिए और हमारे यहाँ वालों को भी, पाकिस्तानियों को भी अक्ल सलीम कि हर जगह जहाँ भी रिस्क का एहतराम है, अदब है। इसको फेंकना यूं कि ज़ाया हो जाए, गिरे ज़मीनों पर, गलत। हाथ में वहाँ हाथ से भी बांटते हैं, लेकिन गाड़ियों में भी बहुत फेंकते हैं, भीड़ होती है। हमारे साथ एक हाजी थे जिनके हाथ में बैसाखी थी, तो वो दूर खड़े खड़े जब ये फेंक रहे होते थे तो वो बैसाखी उठा के उसको दिखाते थे, तो वो गाड़ी में उसको फेंकता कैच कर लेते थे। तो वो माजूरों पर लोग वैसे तरस खाते हैं ना। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दौरान तवाफ काबा मुशर्रफा ये लेफ्ट जानिब दिल की जानिब होने की कोई वजह है जो हम लेफ्ट जानिब रखते हैं? आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, काबे से अगर तुरबत शेफ फाजिल है, क्यों बाईं तरफ इसके लिए मंजिल है। इस फिक्र में जो दिल की तरफ ध्यान गया, समझा कि वो जिस्म है, ये मरकद दिल है। लेकिन मैं सोच रहा था कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर काबे से दिल की जानिब एहतरामन कहते हैं कि दिल उल्टी तरफ होता है ना, तो यहाँ मुराद ये कि लेफ्ट साइड, कि काबे से ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा लेफ्ट साइड क्यों है, क्या हिकमत है। तो मैं ये गौर कर रहा था, तो मेरा दिल की तरफ मेरी तवज्जो गई कि दिल भी तो लेफ्ट साइड है, जो सारे बदन का बादशाह है, सबसे अहम है दिल। तो इसलिए मतलब ये कि सरकार का रोज़ा भी चूंकि कायनात का दिल है, ये भी लेफ्ट साइड है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। माशाअल्लाह, ये आपने जब मस्जिद नबी शरीफ में एक आशिक रसूल हाजिर हो तो वो इस तरफ गौर करे कि ये दिल की जानिब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा अनवर है। लेकिन जब तवाफ़ के दौरान काबा शरीफ जब हम दिल की जानिब रखकर हम तवाफ़ करते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह? मतलब ये कि जो शुरू से चला रहा, तो ये है मतलब वाजिब है शायद दिल की तरफ काबा। अब वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया, अंबिया किराम ने भी इसी तरह किया होगा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो और सारे इसी तरह करते आ रहे हैं। तो ये हुक्म शरीयत है, सर तस्लीम खम है। अब इसमें वाकई कोई इसकी लॉजिक भी होगी, हिकमत भी होगी, ला अदरी। यानी अगर हम तवाफ़ हजर अस्वद को बोसा देकर इस्तिलाम करते हैं तो तवाफ़ का जो आगाज़ है वो सीधी जानिब से ही होगा, यानी सीधी तरफ से आप स्टार्ट लें। तो जब सीधी जानिब से स्टार्ट लेंगे तो आपका जो काबा शरीफ है वो आपके दिल की जानिब होगा। तो ये सीधी जानिब से यहाँ को फजीलत मिलती है कि चूँकि ये एक अहम तरीन और बड़ा अफजल काम है, तो उसको सीधी तरफ से हम सीधे हाथ से स्टार्ट ले रहे हैं। क्या ये हो सकता है? ये तो है कि हजर अस्वद से हम थोड़ा लेफ्ट की तरफ खड़े रहते हैं, कि अपने सीधी तरफ अब हजर अस्वद पूरा आ गया, और अभी थोड़ा सरक कर अब हजर अस्वद की तरफ आ जाते हैं, इस्तिलाम करते हैं। अब राइट टर्न हो जाते हैं, लेफ्ट टर्न होते, क्या बोलेंगे, बिल्कुल राइट टर्न होंगे ना, तो ये लेफ्ट दिल की तरफ अब काबा है। शुरुआत इसकी सीधे हाथ से हो रही है, यूं आप कहना जी, चाहते मैं हैं। ये कह रहा हूँ। अब पता नहीं ये हिकमत, इसको ये तो एक तरीका है, हिकमत अल्लाह बेहतर जाने क्या है। हजर अस्वद को चूमना हाजी के लिए क्या ज़रूरी है? हजर अस्वद चूमना ना मिले तो इशारे से अपना हाथ चूमने ना इशारा करके, ये इस्तिलाम कहलाता है, ये सुन्नत है। एहराम की हालत में साए के लिए छतरी इस्तेमाल करना कैसा? कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता मैदान आराफात में ये लिखा है कि हत्तल इम्कान
यानी बिल्कुल यानी कि धूप में रहे, छतरी के साए से भी, हत्ता के छतरी के साए से भी हो सके तो बचे, मगर जो मजबूर है वो माजूर है, इस तरह का लिखा है। जो माजूर है वो मजबूर है, इस तरह जो अल्फाज लिखे हुए। तो फिर भी यानी कि नाजायज नहीं है। लेकिन अब तो हम खेमों में रहते हैं, अब तो खेमे भी ऐसी हो गए हैं, VIP हज है, हज तो करने वाले कर गए, मज़ारों में चले गए। अब लोगों का हज तो बड़ा आसान हो गया है, फुर्र से हवाई जहाज उड़ के पहुंच जाते हैं। पहले तो पैदल चलते थे, तो घोड़ों पर, तो ऊँटों पर, रास्ते में काफिले लुट जाते थे, शहादतें हो जाती थी, और पता नहीं किस तरह ये हजरात हाजिरी से मुशर्रफ होते थे। और अब तो फिर भी सुस्तों की कमी नहीं है, हवाई जहाज में भी जाने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे है, मालदार लोग होते, आज फर्ज होता है, नहीं करते, टेप नहीं है। हम मरने की फुर्सत नहीं है। ये जुमला भी कभी आपने सुना हो, मैंने सुने हैं, माअज़ल्लाह। तो मरने के लिए फुर्सत थोड़ी देखी जाएगी, जब मौत आई तो अपनी एक भी ना चलेगी। अब भी अभी तड़े खड़े चलो, सारे काम इधर उधर जो भी है सब सीस हो जाएंगे, चलना पड़ेगा। अल्लाह ईमान सलामत रखे। मदीने में गुंबद खजरा के साए में काश महबूब के जलवों में शहादत का जाम नसीब हो जाए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। ये सवालात का सिलसिला जारी था इसी तरह का। तो ये यौम अरफा यानी अरफा के दिन नहाना सुन्नत है? जी हाँ, सुन्नत मुअक्कद है। जब अरफात करीब आ जाए तो नहाओ, सुन्नत मुअक्कद है। अब जो नहीं नहा सकता तो वो फिर वुजू कर ले। अब वो नहाना वाकई वहाँ आसान तो नहीं है, इतना रश होता है, हर आदमी के बस का काम नहीं है कि वो उस हुजूम में भीड़ में जाके नहाए। फिर लोगों के अखलाकी अंदाज, पानी उड़ाना, क्या पता नहीं क्या क्या करते होंगे, अपने अपने भर के लाते होंगे। तो जो ताज़ा तकड़ा है वो भर सकता है, अपने कोई जालौन वगैरह साथ ले जाए, भर के फिर बेशक नहाए, नसीब की बात है। और ये अपने जो पैदल चलते हैं ना, तो गालिबन इनके लिए भी वहाँ रास्तों में इस तरह के पॉइंट आते हैं नहाने के। और एक बार हम लोग जब गए थे ना, तो उसमें कोई ट्रक था पानी का, उसका भी पानी जा रहा था, हम लोग खूब नहाए थे उसमें। मुझे जो याद आ रहा है, ये शायद सन 80 की बात है, दावत इस्लामी नहीं थी उस वक्त, या पता नहीं स्टेट हो सकता है बाद की हो, दावत इस्लामी की शुरुआत हुई हो। ऐसा एक बार याद पड़ता है कि हम नहाए थे उस पानी में। आपके साथ ही नहाना होता है, यानी कि ज़ाहिर है कि सबके सामने एहराम तो खोलने से रहे, और चादर भी ऐसी ना हो कि जिससे रानों पे चिपक जाए, पानी से बेपर्दगी हो जाए। ये सब एहतियातें करनी है तो 2 चादरें लपेट ले, ऊपर वाली चादर नीचे लपेट ले, और रानने और जो सत्र है ये बिल्कुल छुपा रहे, ये ज़रूरी है। 2019 में भी हुजूर जो अरफात के मैदान में जो बारिश हुई थी, यानी खेमों के अंदर पानी, और फिर वो बारिश जब हुई थी उस वक्त मैदान अरफात में हाजिरी थी, तो उस वक्त दुआ हम अलग हुई थी और बड़ा दुआ का एहतमाम हुआ था। फिर उसके बाद जो गुरूब आफ्ताब से पहले दुआ का एहतमाम होता है वो फिर अलग हुआ था। यानी बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी 2019 में, बहुत ज़बरदस्त वाकई। यानी कि ये इरशाद फरमाइए कि ये मस्जिद हराम में कौन सी इबादत ज़्यादा करनी चाहिए? तवाफ़, नमाज, तिलावत कुरान पाक वगैरह? सबसे अहम इबादत जो है ना, वो वहाँ तवाफ़ है, कि ये दुनिया में और कहीं मुयस्सर नहीं है, सिर्फ एक ही जगह मुयस्सर है। ठीक। और बार बार आदमी आ भी नहीं सकता। जितना हो सके नफल तवाफ़ करता रहे। दौरान तवाफ़ तिलावत तो मुमकिन है, अगर जैसे किसी को याद है तवज्जो के साथ वो कर सकता है, तिलावत भी करता रहे और तवाफ़ भी करता रहे। हाँ, दौरान तवाफ़ नफल नहीं पढ़ सकता, है तो तवाफ़ ही अफजल। बैक़ी इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रावी कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बैतुल हराम के हज करने वालों पर हर रोज़ अल्लाह ताला 120
रहमत नाजिल फरमाता है, 60 तवाफ करने वालों के लिए और 40 नमाज पढ़ने वालों के लिए और 20 नजर करने वालों के लिए। तो यहाँ मतलब ये कि ये हाजियों के लिए मखसूस है। ये लिखा ये बैतुल हराम के हज करने वालों पर ये रहमत का नुज़ूल होता है, रहमत उतरती है कि रोजाना मतलब इन्हें 120 रहमत उतरती है इन पर। अच्छा, अब इनकी फिर तकसीम किस तरह है कि जो तवाफ करते हैं उनको 60 रहमत और जो नमाज पढ़ते हैं उनको 40 रहमत, और जो खाली काबे शरीफ की ज़ियारत करते हैं, बैठे बैठे नजर करते हैं कि काबे पर नजर डालना, नजर जमाना ये खुद सवाब के काम है ना, देखना काबे को, तो उन पर 20 रहमत है उनके लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। तो यूं भी तवाफ ही बेहतर हुआ नफल की जगह पर। गूंगा जो बोल नहीं सकता वो हज का जब एहराम बांधेगा या उम्रे का एहराम बांधेगा तो वो तलबिया कैसे पढ़े? इशारे से, जैसे नमाज में इशारे से पढ़ते हैं। ये क्या होती है तलबिया, हमें भी पढ़ा दें जी। तलबिया क्या होती है हमें भी पढ़ा दें। एक तो है ना टुकड़े टुकड़े में पढ़ाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो दूसरे पढ़ते हैं, मगर अनसब मुनासिब तरीन तरीका ये कि सारे मिलकर पढ़े। तो ये लब्बैक तो जिनको मदीने की तड़प है, हज का शौक है और जिनको मतलब पैसे नहीं है वाले कभी भी नहीं गए, शायद इनमें एक तादाद होगी जिनको लब्बैक याद होगी, है ना। तैयार तो रहना है ना, कब बुलावा आ जाए तो लब्बैक तो आती हो अपने को। हाथ उठा रहे हैं बेचारे, यार गए नहीं होंगे इनमें से एक तादाद, लब्बैक याद कर लिए। तो मिलकर हम पढ़ते हैं फिर इंशाअल्लाह। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीका लक। सल्लु अलल हबीब। दौरान सफ़र हज इस्लामी बहन के अगर मखसूस अय्याम शुरू हो जाएं तो अब उसको क्या करना चाहिए? अगर तो जैसे यहाँ से तमत्तो के लिए गई है, पहले उम्रे का एहराम बांध के गई है और ये अय्याम शुरू हो गए और अभी उसने तवाफ़ सही वगैरह नहीं की थी, तो अपने इन्हीं अय्याम के अंदर, इन्हीं एहराम के अंदर वो रहेगी यहाँ तक कि पाक हो जाए। तो पाक होने के बाद फिर गुस्ल करके तवाफ़ सई वगैरह और जो तक़सीर है वो करवा के उम्रे से वो फ़ारिग होगी। और मिसाल के तौर पर उसने हज का एहराम बांध लिया है और अब इसके ये अय्याम शुरू हुए तो हज के सारे अरकान वो अदा करेगी, यानी मिना, मुज़दलिफ़ा, अरफात वगैरह सब में ये जाएगी, सिर्फ तवाफ़ ज़ियारा ये नहीं करेगी। तवाफ़ ज़ियारा ये उस वक्त करेगी जबकि वो एहराम इस पाक हो जाएगी। पाक होने के बाद वो गुस्ल करेगी, गुस्ल करने के बाद फिर उसने तवाफ़ ज़ियारा करना है, बाकी सारे के सारे काम वो अदा करेगी। फिर इसके ज़िमनी और भी मसाइल हैं, जैसे फ्लाइट है, तवाफ़ ज़ियारा नहीं किया, नहीं कर पाई, है ही बारी के दिन, अब इस सूरत में वो तवाफ़ मजबूरी है, रुक नहीं सकती, तो तवाफ़ कर लेगी, तवाफ़ कर ले। और बदना ऊँट की कुर्बानी, ऊँट या गाय, इसकी कुर्बानी दे। अरे वही दम की तरह ही है, खुद गोश्त नहीं खा सकते, हरम की हद में होना ज़रूरी है, हुदूद हरम में ये देना होगा इसको। और ये भी गाले में लिखा है कि तौबा भी करे, मस्जिद में दाखिल हुई ना कि दाखिल होना हराम है मस्जिद में, इस हालत में जबकि बंदा जो है जिस पर गुस्ल फर्ज हो या यही हाइजा। बड़ा हज पे जाने को जी चाहता है, बड़ा हज पे जाने को
जी चाहता है बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बुलावा अब आएगा कब या इलाही 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 मक्के में आऊं मदीने में आऊं बना कोई ऐसा सबब या इलाही करो ऐसा कर दे मदीने में आकर गुजारों में फिर रोज़ो शब या इलाही दिखा दे बाबारे मदीना दिखा दे बाबारे मदीना दिखा दे पे ताज जारे अरब या इलाही पे ताज जारे अरब या इलाही बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बड़ा हज पे आने को जी चाहता है या खुदा हज पे बुला आके मैं काबा देखूं काश एक बार मैं फिर मीठा मदीना देखूं बड़ा हज पे आने को जी चाहता है बड़ा हज पे आने को जी चाहता है नज़र में मुहम्मद के जलवे बसे हो नज़र में मुहम्मद के जलवे बसे हो चलो इस जहाँ से मैं जब या इलाही चलो इस जहाँ से मैं जब या इलाही गुनाहों से सतार को दे मुआफ़ी गुनाहों से सतार को दे मुआफ़ी करम हो न करना गज़ब या इलाही
कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, कैसा है नूर छाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में, हर दिल है जगमगाया मदनी मुज़ाकरे में। मुझे अपने लोगों के इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह। पापा जाने मुझे मदीना जाना है, क्या बताऊं क्या क्या मदीना है, या रब्बी मुस्तफा तुम मुझे आके बुला कि मैं देख लूं माशाअल्लाह, प्यारे प्यारे बच्चों की प्यारी प्यारी अदाएं। मरहबा। अल्लाह पाक इन सारे बच्चों को आलिम बामल मुफ्ती इस्लाम दावत इस्लामी का मुखलिस मुबल्लिग बनाए और माँ बाप दादा दादी नाना नानी भाई बहन खानदान के साथ बार बार हज और बार बार मदीने का दीदार नसीब फरमाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पापा चांद, ये गाय बकरियों को चूड़ियां क्यों पहनाते हैं? हाँ भाई, गाय बकरियों को चूड़ियां क्यों पहनाते हो? वो पाँव में पहनाते है ना घुंघरू, इसको इस बच्ची चूड़ियां कह रही है। चलो मर्जी है उसकी। घुंघरू पहनाने में वो ताजीम की नियत है ना, ताजीम की नियत से कि ये अल्लाह की राह में कुर्बान होने वाला है, इस नियत से घुंघरू पहनाए या इस पर हार डालते हैं, दुपट्टा बिछाते हैं, इस पर चादर सजावट करते हैं इसकी कुर्बानी के जानवर की, तो ताजीम की नियत से ऐसा करना ये जायज है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला खातमिन नबिय्यीन। मेरे आका नेमत सैयदी और मुर्शिदी हज़रत क़ुत्ब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का फरमान आली शान है कि दरवेशी यानी फ़कीरी ये है कि किसी का दिल मत दुखाओ। आज 34 ज़ुल्हज शरीफ 1444 हिजरी है और सैयदी क़ुत्ब मदीना का उर्स मुबारक है। हमने नियाज़ की है, आपने भी ना की हो तो नियाज़ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सैयदी कुतुब मदीना मौलाना ज़ियाउद्दीन मदरी रहमतुल्लाहि अलैह इनकी जाए विलादत यानी बर्थ प्लेस क्लासवाला में हम मौजूद हैं। क्लासवाला में ये मकान आली शान जहाँ हुज़ूर सैयदी कुतुब मदीना की विलादत हुई और ख़ास वो कमरा जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ आपकी विलादत हुई है। दावत इस्लामी ने अल्हम्दुलिल्लाह ये जगह ख़रीद के इस मकान को फिर जहाँ मस्जिद मदरसतुल मदीना जामिअतुल मदीना कायम है और सैयदी कुतुब मदीना रहमतुल्लाहि अलैह के उर्से पाक के मौके पर आज इज्तिमाई तौर पर यहाँ मदनी मुज़ाकरे के लिए भी इस्लामी भाई जमा हैं। एक तो आप सबके लिए दुआ भी फरमा दे, दूसरा कुछ इस बारे में अर्ज करना था। यहाँ जो जामिअतुल मदीना कायम है, यहाँ के तलबा ने अल्हम्दुलिल्लाह उर्से सैयदी कुतुब मदीना के मौका पर ख़ास तौर पे जो है वो 19 लाख मरतबा कमो बेश दुरूद पाक पढ़कर इसका सवाब आपकी बारगाह में पेश किया है कि आप जो है वो आज उर्से कुतुब मदीना के मौका पर जो है वो इस साल कर दें। आप
سے کچھ سوالات بھی تھے کہ ایک تو یہ کہ سید قطب مدینہ سے آپ کی پہلی ملاقات کا کچھ احوال اگر آپ بیان فرمائیں، اور آپ نے ان کی بیعت کی تو کیا ایسا خاص تھا جو آپ انہی کی طرف مائل ہوئے، اور پھر سید قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے اخلاق کے لحاظ سے، کردار کے لحاظ سے کیسا پایا، جن کی سیرت کے بارے میں ارشاد فرمائیے تاکہ ہمارے دلوں میں بھی عشق رسول کا جذبہ بڑھے، عمل کا جذبہ بڑھے۔ آج عرس قطب مدینہ کے موقع پر ہم سب کے لیے اور کلاس والا ضلع سیالکوٹ کے ناشکان رسول کے لیے بھی دعا فرما دیجیے۔ ماشاءاللہ، حضور سیدی قطب مدینہ رحمۃ اللہ علیہ کی جائے ولادت کلاس والا تو تصویر میں ہی دیکھی ہے میں یہی غور کر رہا تھا کاش کبھی زندگی میں ایسا موقع ملے کہ میں اپنی آنکھوں سے زیارت کروں کہ کیا ہوتا ہے۔ اللہ پاک سیدی قطب مدینہ پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اسلاف کی یادگار تھے، عام لوگوں سے بالکل مختلف تھے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے کبھی نہیں دیکھا۔ ادھر ادھر کی جو عام طور پہ جو ہم لوگ باتیں کر رہے ہوتے نا، چپ چاپ رہتے تھے، اور جب کوئی آتا تو آئیے مرحبا تشریف رکھیے، تقریباً اتنا بس سلام کیا، سلام کا جواب ارشاد فرمایا۔ کسی نے دعا کا عرض کیا تو فرماتے کہ دعا گو بھی ہوں، دعا جو بھی ہوں، میں کہ دعا کرتا بھی ہوں اور دعا چاہتا بھی ہوں، میرے لیے دعا کرو۔ اور نعتوں کا تو بڑا شوق تھا، بارہ ایسا ہوتا جیسے کوئی آتا، ہاں نعت پڑھتے ہیں، پڑھی نعتیں سنتے رہتے تھے۔ چائے کا اتنا بڑا تھرماس آپ کے پاس تشریف فرما رہتا تھا، حاضر رہتا تھا۔ جب بھی ہم لوگ شام کو جاتے تھے وہ عام طور پہ بس وہ تو کبھی ناغا نہیں دیکھا چائے کا کہ وہ چائے نہ ہو، یہ یاد نہیں ہے، چائے تشریف حاضر رہتی تھی ان کے قدموں میں، تو ہم اس کو مطلب یہ پیتے تھے نکال کر، یعنی جو بھی آئے ظاہر سب کو چائے ملتی تھی وہاں پر، یہ لنگر سمجھو کہ جاری رہتا تھا۔ پھر مغرب کے بعد میلاد شریف، نعت خوانی ہوتی تھی، تو حج کے دنوں میں زیادہ ہی لوگوں کی تعداد ہوتی، ورنہ یہ ہوتی سارا سال تھی ڈیلی، اور وہاں عام طور پہ لنگر بھی نعت خوانی کے بعد لنگر بھی کھلایا جاتا تھا، سالن روٹی، کبھی سبزی روٹی، اس طرح کبھی چاول بھی، برابر یاد نہیں ہے، لیکن عام طور پر وہ روٹی اور سالن، اس طرح مطلب ہے کہ دل بڑا سخی تھا۔ جو آپ کا خود آپ کا قول ہے کہ کوئی دے تو منع نہیں، لے لیا تو کوئی یعنی کہ طمع نہیں، لالچ نہیں، اگر کوئی دے تو منع نہیں، اور اب لے لیا تو جمع نہیں، آگے بڑھا دو۔ یوں بڑا سخی دل تھا آپ کا۔ ایک بار کوئی آئے مطلب علوی بزرگ تھے، مالکی بزرگ، اور انہی نے بالآخر جنازہ بھی سیدی قطب مدینہ کا پڑھایا تھا۔ ایک خاص خلیفہ تھے اور حضرت کے مقرب تھے۔ وہ آئے تو مجھے حکم دیا کہ فلاں چیز لے آؤ، تو میں لے آیا، حاضر کیا، کتنے کی آئی، پیسے لے لو، تو میں حاضر لے لو، چپ چپ لے لیے۔ پھر اللہ پاک ان کا صدقہ نصیب فرمائے، بہت سادہ بزرگ، سفید لباس کے علاوہ کبھی ان کو میں نے دیکھا نہیں، ہمیشہ سفید لباس۔ ظاہری طور پر جو آستانہ شریف تھا وہ زیادہ وہ نہیں تھا، مطلب
जैसे कि बहुत बड़े बड़े हाल होते हैं, इस तरह का नहीं था। मकान आलीशान भी एक सादा सा बिल्कुल, और वो जो आप जहाँ तशरीफ फरमा होते थे, महफिल जमती थी जहाँ, ये भी बहुत सादा जगह थी, कोई टिप टाप वगैरह, खूबसूरत रंग रोगन वगैरह, सादा। सादगी तो मैंने ऐसी देखी कि शायद ही किसी बुजुर्ग में ऐसी सादगी देखी हो। इतनी सादगी के लिबास में ऐसी सादगी कि अल्लाह अकबर, ईमान ताज़ा हो जाए। किताबों में नहीं बुजुर्गों के पढ़ते हैं तो इस तरह के ये नजर आते थे। शाह शेख मोहम्मद अली मुराद, शेख अली मुराद, मोहम्मद अली, शेख मोहम्मद अली मुराद रहमतुल्लाह अलैह, ये भी वफात पा चुके हैं। तो ये तशरीफ लाए थे और इन्होंने ही वो जनाजा मुबारका सैयदी कुतुब मदीना का पढ़ाया था। तो मैं तो सन 80 में हाजिरी से मुशर्रफ हुआ था, और सन 81 में 1 साल के बाद आपका विसाल में आपका इंतकाल हुआ था। हॉस्पिटल में भी कुछ अरसा रहे इंतकाल शरीफ से पहले, तो वहाँ भी महफिलें जमती थी। नात शरीफ के यानी ये आपकी रूह की ग़िज़ा थी, इसके बगैर चैन नहीं था, नातें सुनते रहते थे। अच्छा, दूसरी एक खास आजिज़ी, ये कहीं भी नहीं देखी मैंने। खुद दुआ नहीं कराते थे, कभी कभार करा ली, कोई ना हुआ तो, वरना किसी को भी बोलते थे कि आप दुआ करा दें, आप दुआ करा दें। लोग जब महफिल के इख्तिताम पर, वरना हम जैसे जो लोग हैं ना, कि हम कहीं हो ना तो हम ही दुआ करेंगे, हमारा तो बिल्कुल ये नहीं कहे। अगर कोई और दुआ कराते तो है, फिर होते हुए उसने दुआ कराई। लेकिन सैयदी कुतुब मदीना की आजिज़ी पर कुर्बान, आप किसी को फरमा देते, किसी को भी दुआ कराओ, तुम दुआ कराओ, इस तरह मतलब दूसरों से दुआएं करवाते थे। कमाल कमाल है, ये कहीं भी नहीं देखा मैंने जिंदगी में। अच्छा, अब हमारे यहाँ ये भी है, ये कोई करना चाहिए तो लोग थोड़ा बहस करेंगे, हजरत नहीं आप, हजरत नहीं आप, हजरत। अब इस तकल्लुफ में कौन पड़े, तो आदमी दुआ कराते। लेकिन वहाँ किसी की मजाल नहीं होती थी, कोई मतलब कुछ बोल जाए, क्यों क्या चाह कर जाए, हिम्मत ही नहीं होती थी। ये कोई मतलब नहीं, क्योंकि हजरत बिल्कुल है ना टाइट कुफले मदीना, जिसको हमारी आज की बोली बोलते हैं, बोलते बहुत कम बोलते थे। नसीहत कर दी, काम की बात कोई जरूरत हुई तो कर दी, वरना हम लोग जिस तरह आओ आए, कब आए, कहाँ ठहरे हो, क्या काम कयाम है, कब तक रहोगे, फ्लाइट कब, कौन सी, ये कभी मैं 2 महीने तक हाजिरी होती रही मेरी। जैसे कभी ये पंचायत जो हमारे हम लोग जो करते हैं ना, इस तरह की पंचायत नहीं होती थी। फजूल सवाल इधर के उधर के, जैसे वो होता आजकल गुफ्तगू में, कुछ भी नहीं होता था ऐसा, कुछ फरमाते ही नहीं थे इस तरह की बात। आया मरहबा, गया फी अमानिल्लाह, फजूल बातें नहीं। जब मैं हाजिरी से मुशर्रफ, आखिरी मेरी हाजिरी से बहुत रंजीदा था, मैं बहुत रंजीदा था। मैं रोता हुआ हजरत की बारगाह में हाजिर हुआ, हाजिरी देकर आखिरी अलविदाई हाजिरी। तो मैं रो रहा था, तो हजरत क्या हुआ, क्या हुआ? तो मैंने कहा मैं वतन जा रहा हूं, मदीना छूट रहा है। बोला तुम जा नहीं रहे हो, आ रहे हो। तो मैं यकीन माने मेरे क्या समझ पड़े, ये क्या कह रहे हो, तुम जा रहे हो बोल के आ रहे हो। ये बाद में पता चला कि इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी की लाइन लग गई। इतनी हाजिरियां मेरी हुई कि मुझे इसकी तादाद याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बरकत वाली बुजुर्ग हस्ती थी, अल्लाह इनके सदके हमें बार बार मदीने की हाजिरी नसीब फरमाए। अच्छा, ये मदीने में मैंने शेर लिखा 77 बरस, तो हाजी अजहर ने भी 77 बरस पढ़े थे। अभी मैंने जुमेरात का इनका बयान था ना क्लास वाला में, तो कुछ हिस्सा हाजिरी थी मेरी मदनी चैनल के जरिए। तो 77 बरस लिखा, वाकई 77 बरस है। फिर अभी हाल ही तवज्जो दिलाई गई है कि 77 नहीं बल्कि 75 बरस। वो किताब में भी इंशाअल्लाह बार बार तो छपती नहीं है ना, वसाइल बख्शिश
75 बरस पढ़ा करें। मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से 75 सब्ज गुंबद देखकर। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, मेरे मुर्शिद ने गुजारे हैं मदीने में बरस, उनकी रहमत से पिछड़ सब्ज़ गुंबद देखकर। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुछ जानवरों के मुतालिक, प्यारे प्यारे जानवरों के मुतालिक बात भी करेंगे। खरीदारों की तरफ से आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है? जब हमारे पास खरीदार आता है तो जब हम उसकी कीमत मांगते हैं तो कहता है कि यार पिछले साल मैंने 5 लाख का खरीदा था तो अभी 8 लाख का आप क्यों दे रहे हैं? 20 लाख के जानवर का 10 लाख लगाए तो ये तो एक तरह से मजाक ही कर रहे हैं। तो एक जानवर काटते थे आज से 25-30 साल पहले, और मैं आपको बताता हूँ उस वक्त हमारे वालिद हमें दिला रहे थे 250 रुपए की गाय दिलाई थी, वो भी हमें याद है जी। 400 के लिए वो भी दिलाई थी। तो आज तो लाखों में 40 लाख 50 लाख 60 लाख ये यहाँ तक पहुंच गया। जेब में जितनी इस्तिताअत है, अब या तो पैसे उतने लगाएं कि एक बछड़ा मैंने बेच दिया किसी को, मैंने उसको 7.5 लाख रुपए फाइनल करे, उसने कहा नहीं मेरी गुंजाइश नहीं है, 7 लाख रुपए मैं लूंगा। मैंने कहा यार आप कह रहे हैं, तो कह रहे हैं यार मेरे पास कुर्बानी में इसके लिए आओ पैसे नहीं है। मैंने उसको 7 लाख रुपए का बछड़ा बेच दिया, उसने 50,000 रुपए मुझे टोकन दिया, चला गया घर। फिर वो घर से 1 घंटे बाद फोन करता है मेरी बीवी मना कर दी है। तो ये मजाक नहीं है तो और क्या है? टोकन वोकन का कोई सीन होता है तो ये वापस तो नहीं करने होते या क्या? हम दे देते हैं। अच्छा, हम दे देते हैं टोकन। इतने अच्छे कस्टमर होते हैं कि मैं आपको बताऊं ही नहीं, कहते बस ये पैसे बताओ, ये पैसे ले लो यार, बस खत्म करो। लेकिन मैं कहता हूँ यार इसमें बहुत ही ज्यादा जो है ना उनसर, दिखावे का बहुत ज्यादा उनसर आ गया है, मजाक के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत आ गया है। तो मैं कहता हूँ खुदारा मैं सबसे ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ जो भी कुर्बानी करते हैं कि यार इसको मजाक ना बनाएं। बिला वजह छेड़ते हैं जी जी। तो आपको कैसा फील होता है? सिगरेट लगा देते हैं जानवरों को। अच्छा, जी, ब्लेड मार देते हैं। वजह तफरी समझते हैं इसको, मोहब्बत से जानवर तैयार करके लाते हैं, हमारा दिल जानता है। प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा कि भाई ये फलां बछिया है, मैं इसको बुलाता हूँ तो मेरे कहने पे आती है, मेरे कहने पे रुकती है, मेरे से मोहब्बत करती है, वो आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। तो फिर ये जानवर हमसे जाते हैं तो हमें इसका इतना दुख और अफसोस होता है। संदल संदल बेटा इधर आओ, आ जाओ मेरी, आ जाओ इधर आ जाओ संदल, आगे आओ आगे आओ आगे आओ आगे आओ और आगे आओ और आगे आओ मेरी बेटी, आ जाओ आ जाओ, जाओ अपनी जगह पे, उधर चलो अपनी जगह पे जाओ, शाबाश चलो चली जाओ। शेख आपने हाजी साहब की गुफ्तगू सुनी, ये व्यापारी हैं लेकिन कस्टमर और ख़रीदार की तरफ से इनको जो मामला दरपेश होते हैं, कस्टमर और ख़रीदार बाज़ औक़ात कुछ ऐसी गैर इखलाकी और दिल आज़ारी वाली चीज़ें कर जाते हैं जिससे मतलब इखलाकी तौर पर भी दुरुस्त नहीं है और हुकूक के भी आई थिंक सो के मसाइल हो सकते हैं। तो प्लीज़ शेख बताइएगा आखिर इन तमाम मसाइल का हल क्या है? अल्लाह अल्लाह, दोनों ही तरफ से आमतौर पे होता है। बाज़ों का कस्टमर वाकई इनका अंदाज गलत, झूठ बोलते हैं और गुंजाइश होने के बावजूद कहते हैं गुंजाइश नहीं है, या उधर तो इतने का छोड़ के आया हूं मैं, इससे तो भारी था वो जानवर और आप इतना मांग रहे हैं। तो कई बार ऐसे झूठ मूठ ये बातें कर रहे होते हैं। तो जो भी ऐसा करता है, झूठ बोलता है, अरे वो मुजरिम है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। और बेचने वाले ये भी किसी से पीछे नहीं होते। अभी तो हमने तो वन साइड सुनी है ना, तो बेचने वाले भी बाजू ऐसा अंदाज करते हैं कि गाहक को फिर मस्ती सूझती है, गाहक भी फिर वो हिसाब किताब चुका देता है। शेर पे सवा शेर होता है बाजू का, गाहक भी। ये दोनों तरफ से ही होता है, सबको मतलब खौफ खुदा के साथ, खाली ये जानवर ही नहीं, हर तिजारत में, हर कारोबार में, मतलब जिंदगी के हर शोबे में अल्लाह और रसूल की इत्ताअत
के साथ ही मतलब बातचीत जो भी काम कर रहा है वो किया जाए। झूठ से बचना है, धोखा नहीं देना, फ्रॉड नहीं करना, वरना आखिरत बर्बाद हो सकती है। दिल आजारियों की भी सूरतें बाज़ औक़ात दोनों तरफ से होती है। कभी ग्राहक दिल आजारी कर देता है तो कभी बेचने वाला दिल आजारी कर देता है। जो भी ऐसा करता है उसको तौबा भी करनी चाहिए। जिसका दिल दुखाया उससे उस अंदाज में, अच्छे अंदाज में माफी मांगे कि उसके दिल साफ हो जाए। अब इसको सबके सामने जलील कर दिया किसी को और कान में सॉरी, इस तरह तो सेट नहीं होगा ना। जैसी मतलब दिल आजारी की उसी अंदाज में उससे माफी भी मांगेंगे तभी मतलब यानी तरकीब बनेगी। खौफ खुदा रख कर ही हमें अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। अल्लाह पाक हम सबको अपना खौफ अता फरमा दे, शरीयत की पाबंदी नसीब करे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरों का सिलसिला जारी है और अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्हिज्जतुल हराम के 10 मदनी मुज़ाकरे अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा मदनी मुज़ाकरा जारी व सारी है। यहाँ पर बहुत सारे आशिकान रसूल मौजूद हैं, बाहर से भी आए हुए हैं और मज़ीद आमद का सिलसिला जारी है। चंद इस्लामी भाई आपसे सवाल करेंगे और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपसे जवाब भी लेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफ़ा गुलशन कराची से मुस्तफ़ा तारिब। मेरा सवाल ये है मुर्शिद की बारगाह में कि बीवी के लिए शौहर के जो रिश्ते कौन महरम होते हैं, इसी तरह से शौहर के लिए बीवी के रिश्ते कौन कौन से महरम होते हैं, बराए करम जवाब अता फरमा दीजिए। डिटेल है इसमें तो। अगर सिर्फ बीवी के लिहाज से और शौहर के लिहाज से देखेंगे तो फिर तो बीवी के लिए ससुर ही जो है वो इसका महरम बनेगा और बाकी के शौहर के लिए उसकी सास महरम बनेगी। कोई दूसरा तो फिल वक्त ज़हन में नहीं आता महरम होने के एतबार से। बाकी और कोई रिश्ता है जिसकी वजह से आपस में इनके रिश्तेदार महरम बनते हैं तो वो एक अलग मामला है। सास की माँ फिर ऊपर तक जाएगा वो तो एक अलग मामला है। सास की माँ, ससुर का बाप वगैरह। सास की माँ और ससुर का बाप ये महरम बनेंगे। ये बीवी के लिए हुआ। शौहर के लिए भी, बल्कि शौहर के लिए वो उसकी सास महरमा। मगर ये वो रिश्ते हैं कि जो यानी कि तकलादी टाइप के रिश्ते हैं, ये खतरनाक होते हैं। इनमें बेहतर यही है कि पर्दा रखा जाए। मैं अपनी बहुओं से पर्दा करता हूँ, आमना सामना नहीं है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसमें आफियत है। अगरचे शरन दुरुस्त है लेकिन खतरात बहुत है। इसकी तफसीलात जो है ना, ये महरमात का बयान ये बहार शरीयत के दूसरी जिल्द में 7वां हिस्सा दूसरी जिल्द, इसमें तफसील से सबको पढ़ लेनी चाहिए, इसमें फायदा होगा आपको। पर्दे के बारे में सवाल जवाब में भी ये मालूमात आपको मिल सकती हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। एक और इस्लामी भाई आपसे सवाल अर्ज करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शकीर अतारी है, मैं कराची से हाज़िर हुआ। अमीर अहले सुन्नत की बारगाह में मेरा सवाल अर्ज़ है कि तस्बीह फातिमा नाम रखना कैसा है? आयत फातिमा नाम रखना कैसा है? तस्बीह फातिमा, आयत फातिमा, आयत फातिमा रखते तो हैं लोग। मुफ्ती साहब मना फरमा रहे, दुरुस्त नहीं फरमा रहे। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिही वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम, सुब्हानल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i
रब्बिल अर्शिल अज़ीम 3 मरतबा जिसने पढ़ा उसने गोया शब कद्र हासिल कर ली। आइए मिलके पढ़ते हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम ला इलाहा इल्लल्लाह अल हलीमुल करीम सुबहानल्लाह रब्बिस समावाति अस्सबई रब्बिल अर्शिल अज़ीम सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं तो ये दुआ किसी मजलिस से उठते वक्त 3 मरतबा पढ़े तो उसकी खताएं मिटा दी जाती हैं, और जो मजलिस से खैर हो, मजलिस से जिक्र में पढ़े तो उसके लिए खैर यानी भलाई पर मोहर लगा दी जाएगी। आइए मिल के पढ़ते हैं। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम में नफिल रोज़े रखने वालों की नीयतों के हवाले से हम रोज़ाना कारकर्दगी सुनते हैं। आइए देखते हैं। माह ज़ुल्हिज्जतुल हराम 1444 हिजरी में नफल रोज़ों की नीयतें, 9 रोज़े रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 21,256 21,256। इस्लामी बहनों की तादाद 9,159 9,159। 5 रोज़े रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 28,317 28,317। इस्लामी बहनों की तादाद 10,306 10,306। 3 रोज़े रखने वालों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 50,902 50,902। इस्लामी बहनों की तादाद 22,524 22,524। कुल रोज़ों की नीयतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 1,0475 1,0475। इस्लामी बहनों की तादाद 41,989 41,989। टोटल इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की नीयतें 1,42,464 1,42,464। 21 जून 2023 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात। और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, बच्चों को खुश करने वाले को जन्नत में जो घर मिलेगा उसका नाम बताइए। जवाब दारुल फराह। सवाल नंबर 2, अंधे जानवर की कुर्बानी हो जाएगी या नहीं? जवाब नहीं होगी। सवाल नंबर 3, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को जिस पहाड़ पर कुर्बान करने के लिए ले गए उसका नाम बताइए। जवाब कोहे सुबैर। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: बिनते अब्दुल मजीद अत्तारिया, वाह कैंट, अबू हिलाल बिलाल अत्तारी, मोहल्ला खैर मोहम्मद मरी, मोहम्मद अजीज खानपुर, बिनते अल्ताफ हुसैन गुजरात, उम्मे फजैल अत्तारिया लाला मूसा, बिनते सैयद हसन अत्तारी कराची, रेहान अत्तारी पन्नू आकिल। इन सेलेक्टेड नामों में से कुरान दाजी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम अबू हिलाल बिलाल अत्तारी, मोहल्ला खैर मोहम्मद मरी। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम।
ناظرین سے روزانہ مدنی مذاکرے میں 3 سوالات کیے جاتے ہیں جن کے جوابات آپ ایس ایم ایس پر دے سکتے ہیں. ایس ایم ایس اسکرین پر جو نمبر چل رہا ہے تو آپ اس پر ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. آج کے سوالات بھی نوٹ کر لیں. سوال نمبر 1، قربانی کے وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ سوال نمبر 2، سعی کے کتنے پھیرے بلا عذر پیدل نہ کرنے پر دم واجب ہو جاتا ہے؟ سوال نمبر 3، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ انور کعبے سے کس سائڈ پر ہے؟ تو ان سوالات کے جوابات آپ اسکرین پر نمبر ملاحظہ کر رہے ہیں تو اس نمبر پر آپ ایس ایم ایس کے ذریعے دے سکتے ہیں. اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنا نام اور نمبر لکھنے کے بجائے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں یا اپنی کنیت ام فلاں یا بنت فلاں کر کے کل عشاء کی اذان سے پہلے تک آپ ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں.